Good morning, all of you. Today we will start Unit 5th of Civics, that is Market. Okay, so in this unit we are having two chapters. First is Market Around Us, and second is A Shirt in the Market. Okay, so there are two chapters. So now first we will start with the chapter 8, that is Market Around Us. Okay, so you all are very aware about the different types of market. आप लोगों को सबको पता है there are like many things we find from the market, we get from the market. Okay, so like we purchase vegetable, soap, toothpaste, masala, bread, rice, dal, like all are necessary things, all are essential things from the market. Sometimes we go to the weekly market like जो week में एक बार लगता है. Sometimes we purchase from wholesaler, sometimes we purchase from retailer, sometimes we purchase from our neighbor shop, sometimes we go to shopping malls, complexes. So in this chapter we will talk about all these things. Okay, so everything is written here, like hawkers होते हैं, our neighborhood, weekly market, shopping complexes, malls and etc. Okay, तो हम सब जगहों से जाकर we generally purchase all these things. So now just see all the things. Weekly market. So we will start with first market, that is weekly market. Now there are some questions. Why do people go to weekly market? Give 3 reasons. क्यों जाते हैं people weekly market में? So first of all, weekly market, in this market things are available at cheaper rates. Cheaper rates में उनको मिलता है. Then the second thing, we will find all the things there. ठीक है, हमें इजीली सब कुछ वहाँ पर मिल जाता है, तो वीकली मार्केट में वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं आ जाती, चीपली थिंग्स मिल जाती है. द बायर बारगेन एंड ब्रिंग द प्राइस डाउन. सो देर आर मैनी बेनिफिट्स और एडवांटेजेस. देखो ये सारे एडवांटेजेस यहाँ पर मेंशन है. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज Who are the sellers in the weekly market? कौन होते हैं sellers? जनरली जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं, जो हॉकर्स होते हैं, वो सारे होते हैं. Why don't we find big business persons? क्योंकि वो वीकली मार्केट में वो परमानेंट जो शॉप्स होती है वो वहीं पर जाते हैं, तो इसलिए वो वीकली मार्केट में बड़े बड़े बिजनेस फर्म्स नहीं आती हैं. Why are things cheap in the weekly market? क्यों things cheap होती है? क्योंकि वीकली मार्केट में अगर कोई परमानेंट शॉप होता है तो उसको शॉप का रेंट देना होता है, अगर वो वहाँ पर लेबर हायर करता है तो लेबर का पैसा देना पड़ता है. बट वीकली मार्केट में ये सब चीज़ें नहीं होती है. वो रोड पर बैठ कर शॉप्स लगा लेते हैं, तो सारे फैमिली मेम्बर्स ही वहाँ पर काम करते हैं, तो उनको रेंट नहीं देना पड़ता है, फिर उनको लेबर का खर्चा नहीं देना पड़ता है. सो दीज आर द थिंग्स. ओके, सो ये सब सिचुएशन है. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद वीकली मार्केट. अ वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ अ वीक. कब लगता है? डे के स्पेसिफिक डे पर लगता है वीक का. ठीक है. देन वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स. परमानेंट शॉप्स नहीं होती. ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज अप इन द इवनिंग. Then they may set up at different place the next day, और नेक्स्ट डे वो और कहीं पर चले जाते हैं. तो इस तरह वीकली मार्केट में ये सारा काम होता है, इसलिए उसको वीकली बोला जाता है. वीकली मतलब वीक में एक दिन. There are thousands of such markets in India. People come here for their everyday requirements. Many things in weekly markets are available at cheaper rates. This is because when shops are in permanent building, they incur a lot of expenditure. अगर permanent building होती है तो उनको रेंट देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है, गवर्नमेंट को फीस देना होता है, फिर जो वर्कर्स वो हायर करते हैं उनको सैलरी देनी होती, वेजेस देनी होती, तो ये सारा होता है. बट they also have to pay wages. ठीक है. But in weekly market these shops owners store the things they sell at home. Most of them are helped by their family members. उनको कौन हेल्प करता है? फैमिली मेम्बर्स. एंड डू नॉट नीड द हायर वर्कर. हायर मतलब कोई किसी दूसरे आदमी को काम पे रखने की ज़रूरत नहीं होती.
वीकली मार्केट्स ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स, इसीलिए उनमें क्या होता है, कॉम्पिटिशन, एक ही गुड के सारे अलग अलग सेलर्स होते हैं, तो अगर आपसे कोई ज़्यादा पैसा लेता है तो आप उससे परचेज करते हैं जो आपसे कम पैसा लेता है। तो ये भी होता है कि सब में क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है, बिकॉज दे ऑल आर हैविंग द सेम प्रोडक्ट्स एंड कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट अमंग देम। तो सब क्या चाहते हैं, मेरा सेल ज़्यादा हो, तो वो कम रेट पर देने को भी रेडी हो जाते हैं। ओके, सो हाई प्राइस वो नहीं चार्ज करते। तो पीपल अगर वो हाई प्राइस चार्ज करेंगे तो पीपल कहाँ चला जाएगा, दूसरी के पास चला जाएगा जो उसको कम रेट पर देता है। ओके, एंड द बायर कैन बार्गेन एंड ब्रिंग द प्राइस डाउन, और बार्गेनिंग भी हमें आती है। आप देखते हो ना कि जैसे कोई शॉपकीपर जो हॉकर कहता है कि भाई ये तो 10 रुपये का है, फिर हम उसको बार्गेनिंग करते हैं, अरे नहीं 5 रुपये में दे दो, अरे नहीं 6 रुपये में दे दो। सो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, one of the advantages of weekly market is that most things you need are available at one place। और क्या इम्पोर्टेंस है, एक ही जगह पर हमें सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। वेदर यू वांट वेजिटेबल, ग्रॉसरीज, क्लॉथ, यूटेंसिल्स किसको कहते हैं, बर्तनों को। ओके, यू डू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट एरियाज, हमें अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए पीपल इनको प्रेफर करते हैं। चॉइस भी मिल जाती है, वेराइटी मिल जाती है और इजीली हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज शॉप इन द नेबरहुड। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है कि किस तरह से समीर भी एक स्मॉल ट्रेडर है, वो वीकली मार्केट में काम करता है, एक वीक में अलग अलग दिन अलग अलग जगह पर जाता है, और जब कोई फेस्टिवल होता है तो उस टाइम उनकी अर्निंग्स क्या होती है, वो 4-5 लोग मिलकर एक वैन हायर कर लेते हैं, वो जगह जगह जाकर सेलिंग करते हैं और उनकी जो इनकम होती है वो बढ़ जाती है। देन शॉप इन द नेबरहुड, we have seen that weekly market offer a variety of goods, however we also buy things from other kinds of market। हम कहाँ से परचेज करके लाते हैं, अपने नेबरहुड के जो आसपास की शॉप्स होती हैं हम उनसे भी परचेज करके लाते हैं। we may buy milk from the dairy, groceries from departmental stores, stationery, eatables or medicines from other shops। Many of these are permanent shops while others are roadside stalls such as that of the vegetable hawker, fruit vendor, fruits बेचने वाला, मैकेनिक एक्सेट्रा। ये सब कहाँ होते हैं, ये सब रोड साइड पर भी काम करते हैं। ओके, शॉप्स इन नेबरहुड आर यूज़फुल इन मैनी वेज। क्यों होती है यूज़फुल, वो हमारे घर के पास में होती है, हम किसी भी दिन जा सकते हैं, हम इजीली परचेज कर सकते हैं, वो हमें जानते भी हैं अगर हमारा नेबरहुड में होता है। तो कभी अगर कई बार ऐसा होता है ना कि हम मार्केट में पैसे लेकर कम हो जाता है तो वो हमें जानते हैं, तो वो बोलते कोई बात नहीं कल दे देना, बाद में दे देना, तो कुछ बेनिफिट्स हमें ईजीली मिल जाते हैं। ठीक है, अब देयर इज़ अगेन वन स्टोरी ऑफ सुजाता एंड कविता। 2 ladies are there, सुजाता एंड कविता। दे वेंट टू बाय समथिंग फ्रॉम द शॉप। अब सुजाता ने क्या किया कि वो उस दिन बहुत क्राउडेड थी, ठीक है, तो सुजाता व्हाट शी डिड, तो सुजाता ने क्या दिया कि हम कई बार लिस्ट बनाकर लेकर जाते ना कि हमें क्या क्या परचेज करके लाना है, तो सुजाता ने क्या किया कि वो जो लिस्ट थी ना वो वहाँ जो बॉय जो सेल्समैन था, जो लेबर काम करता था, उसको दे दिया। तो उसने क्या किया, लिस्ट के अकॉर्डिंग सारा थिंग्स उसको एक साथ दे दिया, और उसने सुजाता ने अपनी डायरी में एंट्री कर दिया, उसने शॉपकीपर ने अपनी डायरी में एंट्री कर दिया। तो सुजाता क्या करती है, मंथ में एक बार उसको सारा पे कर लेती है, तो दोनों के लिए इजी हो जाता है। अदरवाइज सेम टाइम मीन वाइल कविता ने क्या किया, कविता लुक्ड अराउंड, कविता को हर जगह ढूंढना पड़ रहा है, वो सर्च कर रही है, यहाँ से उसने लिया, यहाँ से उसने लिया। सो देयर आर दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन 2 वीमेन। तो अब यही पूछा है कि कविता जब सुजाता ने जब लिस्ट दे दी तो सुजाता इजीली खड़ी रही और उसका सारा काम फटाफट से हो गया, बट कविता को सर्च करने में टाइम लगा, उसको इधर उधर सब ढूंढना पड़ा। तो ये डिफरेंसेस हैं। तो इस तरह वाई सुजाता कैरी अ नोटबुक, सुजाता नोटबुक लेकर क्यों जाती है, क्यों उसने कैरी करती है, क्योंकि इजीली वो उसने कितना परचेज किया वो उस नोटबुक में मेंशन करती है कि इतना परचेज किया मैंने और इतने रुपीस का हुआ, और मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में वो जितना पैसा होता है वो उसको पे करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स। इफ देयर आर शॉप इन आवर नेबरहुड देन द पीपल नो अस, वी नो द अदर पीपल। सो इन दैट केस
हम एक रिलेशन बनता है, तो कभी भी ऐसा होता है, देन वी आर एबल टू परचेज आर नेसेसिटीज आर एसेंशियल्स थिंग फ्रॉम द नेबरहुड मार्केट. ओके, सो दिस इज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल. तो इस तरह से ये सब चीज़ें ईजिली हमें अवेलेबल हो जाती है. ओके, so you might have noticed that there are different kinds of sellers even in neighborhood market. तो कई अलग अलग टाइप के आपको भी पता है, कई होते हैं जिनकी परमानेंट शॉप्स होती है, कई होते हैं जो रोड साइड पर जॉब करते हैं, शॉप्स लगाते हैं रोड के जो बाहर बैठते हैं ना, लाइक दैट ओनली. ओके, देन नाउ अगेन देर इज अनदर स्टोरी के कविता और सुजाता दे बोथ वेंट टू वन मॉल, है ना, एक मॉल में गए दोनों. तो लाइक उनका जो एक्सप्रेशंस था, तो जो मॉल में था, तो मॉल तो यू ऑल नो अबाउट वेरी वेल कि मॉल में जो ब्रांडेड थिंग्स मिलते हैं, सेल किया जाता है, तो उनका कॉस्ट भी थोड़ा हाई होता है. तो सुजाता एंड कविता दे बोथ आर नॉट रेडी टू परचेज द थिंग्स फ्रॉम दैट मॉल बिकॉज ऑल द थिंग्स आर ब्रांडेड एंड द कॉस्ट इज वेरी हाई. ओके, सो वो क्या करते हैं, घूमने के मोटो से जाते हैं. तो वहाँ जो गेटकीपर होता है वो चाहता है कि इन दोनों को रोक ले, बिकॉज ही नोज कि ये दोनों खाली क्या कर रहे हैं, ओनली खाली यूं ही घूमने के लिए जा रहे हैं. बट स्टिल इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप किसी को भी शॉप में एंटर होने से मना कर लो, ऐसा नहीं हो सकता. ओके, बट दे बोथ वेंट टू द शॉप में गए उन्होंने और देखा, बट व्हेन दे सॉ द प्राइस टैग, जब उन्होंने प्राइस टैग देखा तो देन दे कम टू नो कि ओ इट वॉज वेरी कॉस्टली. सो देन दे रिफ्यूज्ड टू परचेज दैट. उन्होंने बोला छोड़ो, हम तो जहाँ ईजीली अवेलेबल होता है, जहाँ से थोड़ा सस्ता मिलता है, हम वहीं से परचेज कर लेंगे. तो मॉल में मैनी थिंग्स आर ब्रांडेड, समटाइम्स नॉन ब्रांडेड थिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल देयर, बट द प्राइस ऑफ द थिंग्स आर just higher than the neighborhood shops or the roadside shops. Okay, so this is the story about again Sujata and Kavita when they went to shopping mall. Okay, so now the next is shopping complexes and malls. So far we have seen two kinds of marketplaces, weekly market and the markets in our neighborhood. Now we are talking about the shopping complexes. Okay, particularly these days in many urban areas you also have large multi-storied air conditioned buildings with shops on different floors known as malls. Okay, in these urban markets you get both branded as well as non-branded goods. As you have read in the chapter on advertising, वो हम बाद में पढ़ेंगे. Branded goods are expensive, definitely, often promoted by advertising and claims of better quality. क्योंकि branded goods के बारे में सबको पता होता है, उनका advertisement cost लगता है. if like अगर अमिताभ बच्चन किसी brand का advertisement करते हैं तो क्या होगा, तो अमिताभ बच्चन को भी तो उस कंपनी को पे करना पड़ेगा ना. तो that means वो brand बन जाता है, because उसका advertisement कौन कर रहा है, अमिताभ बच्चन कर रहा है. अमिताभ बच्चन खुद एक ब्रांड है, तो उसको ब्रांड से पहचाना जा जाता है. तो उनके नाम से, अरे हाँ ये चीज़ तो अमिताभ बच्चन ने बेची थी, तो हम ऐसा सोचते हैं ना. सो लाइक वो ब्रांडेड में कन्वर्ट हो जाता है. डेफिनेटली ब्रांडेड है, अगर अमिताभ बच्चन का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो जो ब्रांड होगा वो भी तो अच्छा होगा, वो बेटर क्वालिटी होता है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है. Then the companies producing these products sell them through shops in large urban markets and at times through social स्पेशल शोरूम्स में बेची जाती है एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स. और नॉन ब्रांडेड गुड्स इजीली अवेलेबल हो जाती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वो नहीं होती, इजीली उनको कोई भी बाय कर सकता है. इट कैन बी अफोर्ड बाय मैनी पीपल, बट ब्रांडेड थिंग्स may be not affordable for all the people in the society. Okay, so यही होता है कि branded, because these branded things are expensive, so it is not easy that all the people of the society they can afford it. तो ये possible नहीं होता. afford करना मतलब हम अपने पैसे इतने नहीं होते कि हम इन चीज़ों को easily purchase कर सकें. Okay, तो this is all about weekly market, then market in your neighborhood, then shopping complexes and malls. Okay, now the chain of markets. So we will start that the chain of markets. Okay, so chain of markets कि किस तरह से market develop होता है. In the previous section you have read about different markets from where we buy goods.
फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर्स प्रोक्योर देयर गुड्स। अब वो कहाँ से लाते हैं? गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ऑन फार्म्स एंड होम्स। हावेवर वी डोंट बाय डायरेक्टली, हम वहाँ से डायरेक्टली नहीं परचेज कर सकते, ठीक है, कि हम फार्म पर गए और डायरेक्टली परचेज कर लिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। तो जो फाइनल कंज्यूमर मतलब हम कस्टमर्स होते हैं, और जो प्रोड्यूसर होता है, जो फार्म में उसको प्रोड्यूस करता है, जो फैक्ट्री में उसको प्रोड्यूस करता है, उन लोगों के बीच में एक पर्सन और होता है, दैट इज ट्रेडर, जो उन चीज़ों को बेचता है, जो प्रोड्यूसर से लेकर आता है और किसको सेल करता है? कंज्यूमर को। सो दैट इज ट्रेडर्स, ओके। तो हम यहाँ पर नाउ देर आर टू लाइक ट्रेडर्स, फर्स्ट इज होलसेलर एंड द सेकंड इज रिटेलर। होलसेलर्स वो होते हैं जो होलसेल में, जो एक साथ बल्क में मतलब बहुत ज़्यादा, जो प्रोड्यूसर से परचेज करते हैं, लाइक डायरेक्ट वो 1 क्विंटल परचेज करते हैं, 25 किलोज, 50 किलोज, किलोग्राम्स एक साथ वो परचेज करते हैं। सो दे आर होलसेलर्स, ठीक है, वो एक साथ परचेज करके लाते हैं। फिर उन लोगों से कौन परचेज करता है? रिटेलर्स, हॉकर्स, वो सब उन होलसेलर से परचेज करते हैं, और फिर उन रिटेलर से हम परचेज करते हैं। बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू मार्केट और आपको 1 kg ऑफ लेडी फिंगर परचेज करनी है, ओके, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू होलसेलर और आप होलसेलर को बोलेंगे कि भाई मुझे 1 किलो भिंडी चाहिए, सो मे बी ही इज़ नॉट एबल टू गिव यू 1 kg ऑफ लेडी फिंगर। वो बोलेगा नहीं, मैं तो 1 किलो नहीं देता, मैं तो 5 किलो से कम नहीं देता हूँ। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू परचेज 5 kg ऑफ लेडी फिंगर, तो मैं तो वो नहीं परचेज करूँगी, मैं क्या करूँ इतना सारा लेडी फिंगर को। Then who will purchase? Then retailers will purchase। तो ये जो 5 kg होता है वो कौन परचेज करके लाता है? रिटेलर्स परचेज करके लाते हैं। फिर उन रिटेलर्स से हम इजीली 1 kg, हाफ kg हम इजीली परचेज कर सकते हैं। तो होलसेलर्स होते हैं जो लार्ज क्वांटिटीज में रिटेलर्स को सेल करते हैं, और रिटेलर्स से हम परचेज करते हैं जिनको कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, ओके। सो दिस इज अबाउट होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। तो यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, ओके। सो इस तरह से अलग अलग होलसेल मार्केट होता है जहाँ पर लोग क्या करते हैं? होलसेल में परचेस करके लाते हैं और फिर वो रोड साइड पर बेचते हैं, और रिटेलर्स होते हैं जो शॉप पर बेचते हैं, तो वो होलसेलर से परचेस करते हैं और फिर वो शॉप पर सेल करते हैं, रोड साइड पर सेल करते हैं और उनसे कंज्यूमर परचेस करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केट चेन, के किस तरह से चेन ऑफ मार्केट्स बनते हैं। तो ये है कि किस तरह से चेन ऑफ मार्केट डेवलप होता है, ओके। होलसेलर ट्रेडर वुड हैव बॉट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम्स। अगर आपको कोई प्लास्टिक, लाइक इफ यू नीड ओनली 1 मग, तुम्हें 1 मग चाहिए, तो तुम होलसेलर के पास नहीं जाओगे, ही इज नॉट एबल टू गिव यू ओनली 1, वो तो बोलेगा तुम 10 लेकर जाओ, मैं तो 10 से कम नहीं देता। सो नाउ आप 10 का क्या करोगे? सो देन वो 10 कौन लेकर आएगा? रिटेलर, और रिटेलर से आप परचेज करोगे 1, क्योंकि आपको 1 चाहिए। सो दिस इज द कंप्लीट चेन ऑफ मार्केट्स। इस तरह उनको चेन ऑफ मार्केट्स बोला जाता है, ओके। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ आफ्ताब। ये इसी तरह पूरा होलसेलर के बारे में बताया गया है कि जो होलसेलर्स होते हैं वो मॉर्निंग में 2 AM उठ जाते हैं, और जहाँ पर ऑक्शंस होते हैं, जहाँ पर ऑक्शन मतलब क्या होता है? जहाँ पर ऑक्शन किया जाता है कि मैं इतने में परचेज करूँगा, मैं इतने में परचेज करूँगा, वो वहाँ से जाकर परचेज करते हैं, फिर वो वहाँ से लाकर स्टोर करते हैं। फिर 6 AM मॉर्निंग में 6 बजे फिर उन होलसेलर्स के पास रिटेलर्स आते हैं, वो उनसे परचेज करके ले जाते हैं, फिर वो अपनी शॉप पर ले और वो 10 बजे शॉप ओपन करते हैं, 8 बजे शॉप ओपन करते हैं, 9 बजे शॉप ओपन करते हैं, और फिर वहां जाकर हम परचेज करके लाते हैं। सो दैट इज अबाउट द होल चेन ऑफ मार्केट, ओके। सो नाउ जस्ट रीड द होल अप टू आफ्ताब, देन इस तरह से किस तरह से पूरा इस टॉपिक तक आप एक बार और अच्छे से रीडिंग लगा लो, ठीक है। तो इस तरह किस तरह से पूरा चेन ऑफ मार्केट डेवलप होता है, सो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, ओके।